Praise the Lord. Welcome all of you this wonderful afternoon. सर्वांचं स्वागत आहे प्रभू येशूमध्ये. आणि खरोखरच I was glad when he said unto me, let us go in the house of the Lord. मला आनंद झाला जेव्हा ती मला म्हटले चला आपण देवाच्या घरी जाऊ. आणि खरोखरच देवाच्या घरी जाण्याचा आनंद हा एकदम वेगळा असतो. आणि खरोखरच देवाच्या घरामध्ये राहण्याचा आनंद, हा आनंद स्तोत्रकर्ता म्हणतो, जो परात्पराच्या गुप्त घरी बसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीत राहतो. मी परमेश्वर माझा आश्रय, माझा दुर्ग, तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवतो. कारण तो पारध्याच्या पाशापासून, घातक मरीपासून बचाव करतो. त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल, त्याचे सत्य तुला ढाल बकवत. आणि खरोखरच आज नीतिमान न्यायाधीश प्रभू येशू, जो सर्वथैव न्याय आहे, जो अद्भुत मंत्री, सनातन पिता आहे, चला आपण त्याच्या मंदिरात प्रवेश असताना आपण डोळे बंद करूया, आपले हात वर करूया आणि प्रभूला म्हणूया की खरोखरच प्रभू येशू बाप्पा, परमेश्वर चांगला आहे, त्याची दया सनातन आहे आणि त्याची सत्यता पिढ्याला पिढ्या टिकते. For the Lord is good and his mercies endureth forever. Why don't we just lift your hands and tell him? जे देवाचे भय धरतात त्यांनी म्हणावे, परमेश्वर चांगला आहे, परमेश्वर चांगला आहे व त्याची दया सनातन आहे. जर आज तुम्ही त्या सत्यतेचा, दयेचा अनुभव घेतला असेल, आस्वाद घेतला असेल, आपले हात वर करू द्या, म्हणून प्रभू येशू चांगला आहे. We give you all the glory, dear Jesus. And welcome him, म्हणा, पवित्र आत्मा या बाप्पा. We welcome you, dear Holy Spirit of God. We welcome you, प्रभू येशू बाप्पा. We welcome you, God the Father. We welcome you, God the Son. We welcome you, God the Holy Spirit. Then, Papa, help us to worship you this afternoon in spirit and in truth, such as these whom we seek to worship. Father God, in Jesus' name, we bless your name. We bless your name. We bless your name. चला हाथ पर कोई मेरा प्रभु, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आप ही को देते हैं. We bless your name, Jesus. We bless your name, Amen. We bless your name, Amen. Come on, tell him. All heavens declare thy glory, my risen Lord. Forever you will be the Lamb upon the throne. We gladly bow our knees and worship you alone. Forever you will be. Come on, tell him. The Lamb upon the throne. We gladly bow our knees and worship you alone. All heavens declare thy glory, my risen Lord. Who can compare? Come on, tell him with the beauty of the Lord. All heavens declare thy glory, my risen
tell him amen. The glory of the risen Lord. Who can compare? Who can compare? No one can with the beauty of the Lord. One more time, check all heavens. All heavens declare. Oh, wonderful Jesus, your glory, my the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be, forever. The Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. We gladly bow our knees, we bow our knees and worship you alone. Forever, forever you will be, forever. The Lamb upon the throne, oh, the Lamb upon the throne. We gladly bow our knees, we bow our knees and honor thee alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. We gladly bow our knees and worship you alone. Forever you will be, forever. Come on, church, lift your hands and tell him, the Lamb upon the throne. We gladly bow our knees, we bow our knees and worship thee alone. All heavens, amen. All heavens declare thy glory, my the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be. फिर अपने हाथों को उठा करके देखो, forever you will be the Lamb upon the throne. Worship him, we gladly bow our knees to thee and worship you alone, 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 and worship you alone. Come on, lift your hands and tell him. Come on, clap your hands and worship him. Oh, you're worthy, 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 Lord. Your name is awesome, Lord. Your name is worthy. Your name is holy. Come on, lift your hands and tell him. You are worthy to be praised. Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy,
the worship team is praying, the Bible speaks to us. Bible कहती है, and before the throne there was a sea of glass, like unto crystal, and in the midst of the throne, and round about the throne were 4 beasts full of eyes, before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle, and the 4 beasts had each of them 6 wings, and the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Can you lift your hands this afternoon? फिर अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और हमेशा रहेगा. We lift your hands and tell him, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are, and for thy pleasure they are, and were created, and were created. People of God, would you lift your hands and tell him, Tu pavitra, pavitra, pavitra. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. Lift your hands and tell him, for thou, O Lord. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. I exalt
कहे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके किनारे को ऊंचा उठाता हूँ। तू सर्वोच्च आहेस, तू सर्वसमर्थ आहेस. अगर डोळे बंद करा म्हणा प्रभू, तिथलं उंचावतो बाप्पा. I worship you, I exalt your name. You're worthy, बाप्पा. Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are, and were created. Amen. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. There is none. For thou, O Lord, art high above all the earth. You are exalted far above all gods. I exalt thee. 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 Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. Come on, I exalt thee, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. Exalt thee, Lord. Oh Lord, I exalt thee. Come on, sing. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Amen. Come on, tell him we exalt thee, man. Hallelujah. Amen. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more. जहाँ पर भी आप हैं, अपने हाथ को उठाएंगे और दिल से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, आप चांदी से ज्यादा कीमती हो, सोने से ज्यादा महंगी हो, और हीरो और जवाहरों के और रत्नों से भी ज्यादा अधिक खूबसूरत हो। और आप सा मुझको कुछ नहीं दिखता है। मेरे दिल से कहेंगे, यीशु मसीह, मैं आपसे आज पैसे नहीं मांगता हूं, शांति नहीं मांगता हूं, आज मैं आपको देने के लिए आया हूं। Can you tell Lord, I have not come to ask anything from you. I request you, teach me how to glorify you. Teach me how to worship you in spirit and in truth, such as these who we seek to worship you. बिना के यीशु मसीह मुझे सिखाओ आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कैसे करनी है। दिल से कहेंगे, यीशु मसीह, आज तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। कहेंगे, यीशु मसीह, Lord, we come before you just as we are, Lord. As the word says, let us come before the throne of His grace boldly, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Wherever you are,
अब अपने आप को अकेले मत समझना, अपने आप को ऐसा मत समझना कि आपका कोई मूल्य नहीं है। यीशु मसीह ने आपको उसके लहू से खरीदा है। आप कीमती हो। कहेंगे मैं I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you more. Can you say I need you more? I need you more. More than yesterday. I need you, Lord. More than words can say. I need you, Lord. More than ever before. I need you, Lord. I need you more. If you're more hungry for him this afternoon, अगर आप यीशु मसीह के लिए प्यासे हैं, आप यही चाहते हैं कि कल से ज्यादा मुझे आज यीशु मसीह आपकी बहुत जरूरत है, मेरे अगली धड़कन से भी ज्यादा मुझे आपकी जरूरत है, मेरे अगले जो सांस में लेने वाला हूं उससे भी ज्यादा मुझे आपकी जरूरत है. Come on, if you won't feel desperate, come on, cry out to him. Lord, I want to be desperate for you, Lord. उसी को यीशु मसीह मेरे अंदर इस प्यास को जगा दे पिता, ताकि मेरे लिए भी यीशु मसीह सब कुछ बन जाए. Lord, we ask you just, Lord, we know that you're present in God. We know that you're a healer. We know you're a deliverer. We know you're a promise keeper. We know that you're mind changer, heart changer.
We know, Father God, you hold the power in your mighty hand. Lord, this afternoon, Lord, we come before you as your children, Lord. हम आपकी संतान बनकर आपके सामने आते हैं और दिल से कहते हैं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा. Be magnified, be magnified, be magnified, be magnified. Come on, wherever you are, जहाँ पर भी आप हैं, तू बढ़ता जा, कहेंगे, you be magnified. Hallelujah, come on, hallelujah, hallelujah. Come on, say it.
बरसने दे, स्वर्ग के दरवाजों को खोलो, बरसने दे, बरसने दे। इस वक्त परमेश्वर अस्थमा को चंगा करे। God is healing asthmatic patients right now. जिसके हार्ट में छेद है, somebody with a hole in his heart, God is healing you right now. अगर आपके दिल में छेद है, यीशु मसीह उस छेद को चंगा कर रहे हैं। जहां पर भी आपको अपने हाथ में उठाइए, अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हो, यीशु मसीह आपके लंग्स को छू रहा है। तो मालूम चल से चले में बरसने दे, बरसने दे, स्वर्ग के दरवाजों को खोलो, बरसने दे, बरसने दे, स्वर्ग के दरवाजों को खोलो, बरसने दे, बरसने दे, बरसने दे, बरसने दे, स्वर्ग के दरवाजों को खोलो, बरसने दे, बरसने दे, बरसने दे, स्वर्ग के दरवाजों को खोलो, बरसने दे, बरसने दे, बरसने दे, स्वर्ग के दरवाजों को खोलो, यीशु जी, बरसने दे, इस कलीसिया में बरसने दे। आप जिस घर में बैठे हो, प्रभु इस घर में बरसने दे बेटा। You want to experience your rain, dear Jesus. प्रभु यीशु मसीह आपकी बरसात की हम अपेक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बरसने दे, बरसने दे, स्वर्ग के दरवाजों को खोलो, बरसने दे, बरसने दे, तोड़ो इस जंजीरों को, बरसने दे, बरसने दे। शायद आपकी जंजीर में अटके हुए अपना हाथ उठाए, तोड़ो इस जंजीरों को, बरसने दे, बरसने दे, तोड़ो इन जंजीरों को, बरसने दे, बरसने दे। Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it Come on. Let's worship Him for the last time. Amen. I enter the Holy of Holies. I enter by the blood of the Lamb. बिना यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परम स्थान में जाएंगे। Lord, I worship you
Yes, I worship you. Lord, I worship you. Yes, I worship you. For your name is holy, 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 Lord, holy, holy, holy are you, Lord, holy, holy, holy are you, Lord, holy, holy, holy are you, Lord, worthy, worthy, worthy are you, Lord, mighty, 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 Son of God, mighty, mighty, come on, say mighty, amen. Mighty, Son of God, holy, yeah, holy, holy are you, Lord, holy, 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 amen. Holy are you, Lord, holy, holy, holy are you, Lord, mercy, 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 Son of God, mercy, come on, baby. Mercy, Lord, mercy, Son of God, mercy, mercy, mercy are you, Lord. आखिरी बात को देखते हैं enter the holy of holies. I enter by the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter by the blood of the Lamb. Lord, I worship you. Yes, I worship you. Lord, I worship you. Yes, I worship you. For your name is holy, 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 Son of God, holy, 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 holy are you, Lord, holy, holy, holy are you, Lord, mighty, 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 Son of God. Father God, in Jesus' name, हम तेरा आदेश आणि महिमा तेरा गौरव आप ही को देते हैं।
प्रभु यीशु मसीह हम दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। पिता, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देते हैं। यीशु मसीह, you alone are worthy, Lord. You alone are worthy. To you we ascribe all the glory. Jesus, you alone are worthy. हे प्रभु, आमच्या देवा, गौरव, सन्मान व सामर्थ्य यांचा स्वीकार कराव्यास तू योग्य आहेस. कारण तू सर्व काही निर्माण केलेस, तुझ्या इच्छेप्रमाणे झाले व अस्तित्व राहिले. मेरा नंबर विनंती आहे बाप्पा, प्रभू यीशु, आज प्रत्येकाने केली आराधना व सुगंध धुपाप्रमाणे मान्य व्हावी बाप्पा. आज प्रत्येक घरातून, प्रत्येक देशातून, प्रत्येक मंडळीतून आज स्तुतीचा यज्ञ अर्पण व्हावा प्रभू यीशु. सुगंधी धूप बाप्पा आराधना जाओ बाप्पा. And you alone be magnified, Lord. You dwell among the praises of your people, Lord. उच्चात्मय बाप्पा, आमचा ताबा घ्या. सर्व स्तुती, सर्व सन्मान, सर्व आदर, सर्व गौरव तुम्हाला. Forever you will be the Lamb upon the throne. To you we gladly bend our knees and worship you alone. हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आप ही को देते हैं. नासरी यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण करो. आमीन. Praise the Lord. God has been so kind to us. मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जहां पर भी आप हैं, परमेश्वर ने उस घर में से, उस कलीसिया में से परमेश्वर को निश्चित रूप में प्रार्थना करते हैं कि आराधना का जो सुगंध है वो स्वर्ग की ओर चले जाए. Amen. God has been so good to us, and I believe those are sick in bodies, someone with a heart, God has healed the hole in your heart. Asthmatic patients, God has healed your lungs. परमेश्वर ने आपके फेफड़ों में एक नई जान दी है. Amen. Praise the Lord. God has been so kind to us. And if you have your Bible this afternoon, please, अगर आपके पास आपके पवित्र शास्त्र है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हम सबका स्वागत करते हैं. एंड आई नो सम ऑफ देम आर वाचिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. थैंक यू सो मच पास्टर जैक. आई अप्रिशिएट यू सीइंग अस. गॉड इज सो काइंड टू अस. परमेश्वर अच्छा है. इट इज सो गुड टू अस. इफ यू हैव योर बाइबल्स प्लीज लेट्स टर्न द बुक ऑफ रोमन्स. हम रोमियो किताब की ओर बढ़ेंगे एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम द बुक ऑफ रोमन्स. रोम की किताब से, पुस्तक से हम सीख रहे हैं. वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम द बुक ऑफ रोमन्स. एंड द बुक ऑफ रोमन्स बीइंग अ डॉक्ट्रिनल लेटर, हे मंडळीने लिहिलेलं एक सिद्धांताचं पुस्तक आहे. आणि खरोखरच की रोमच्या मंडळीला जो उद्देश लिहिण्याचा होता, जो सद्बोध होता, आज तोच उद्देश आणि सद्बोध आम्हालाच लागू आहे. इन द पर्पस अँड द गुड हार्ट बिहाइंड रायटिंग द लेटर टू द रोम, द सेम पर्पस अँड द सेम इंटेंट applies to us. And remember, duty without doctrine and love without truth cannot go hand in hand. Duty without doctrine and love without truth. Duty without doctrine is religiousness, and love without truth is half lie. So this wonderful afternoon, इस सुनहरे दोपहर के समय, हम ज्यादा वक्त न लेते हुए रोम किताब दूसरा अध्याय, रोमन्स चैप्टर 2, और परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं. गॉड इज स्पीकिंग टू अस थ्रू अपोस्टल पॉल थ्रू हिज वर्ड. रोमन्स चैप्टर 2, रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 ऑल द वे टू वर्स 10. I will read it to you. रोम करास पत्र याचा दूसरा अध्याय
1-10 मी वाचतो. पौलाचे रोमकरास पत्र याचा दुसरा अध्याय 1-10. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou that judgest doest the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Verse 3, I read again. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath, and revelation of the righteous judgment of God, who will render to every man according to his deeds. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory, to them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to Gentiles. Verse 11. For there is no respect of persons, with God. For there is no respect of persons with God. For as many as have sinned without law shall also perish without law, and as many as have sinned in the law shall be judged by the law. Let's pray. मेरे प्यारे यीशु मसीह, आपकी भलाई हमें पश्चाताप की ओर ले चलती है. The goodness of God leadeth thee to repentance. And Father, we all are without excuse. हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ताकि हम कह सके कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सुना नहीं था, मैंने देखा नहीं था. यीशु मसीह, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने स्वयं अपने प्राणों को हमारे लिए सूली पर दे दिया. जिसे पाप नहीं मालूम था, पिता ने आपको हमारे लिए पाप किया ताकि पिता की धार्मिकता हमें यीशु मसीह आप में मिली. आप हमारे सूली पर मर गए, आप ही ने अपना सारा लहू हमारे बहाया. यीशु मसीह, आप ही का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है. आप हमारे सूली पर मर गए, उगाड़ा गया, और तीसरे दिन पिता ने आपको मुर्दों में से जीवित किया. यीशु मसीह, इस वक्त आप जीवित पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए, जितनों ने आपको स्वीकारा है उतनों के लिए आप मध्यस्थी की प्रार्थना करें, और जैसे आप स्वर्ग में चले गए वैसे वापस आने वाले हैं. यीशु मसीह, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आप ही को देते हैं. यीशु के नाम से मांगते पिता, सब ग्रहण करो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. सो एज वी गो द बुक ऑफ रोमन्स, हम देखते हैं द बाइबल स्पीक्स टू अस इन रोमन्स चैप्टर 2 verse 1 begins. It says to us, therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou that judgest
doest the same things. If you see, अगर हम देखेंगे कि पौलुस जो प्रेरित है कलीसिया के लोगों को, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के सामने कोई धर्मी नहीं है, हम सब पापी हैं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. And every single person has no excuse to say that he has never heard about God, never learned about God. Everybody is without excuse. So the first point we see here, Apostle Paul tells us here in chapter 1, रोमी किताब पहले अध्याय में हम देखते हैं, पौलुस कहता है कि विश्वासी तो विश्वास से जिएगा. Would you say this with me wherever you are? विश्वासी तो विश्वास से जीवित रहेगा. Romans chapter 1 verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. तो रोमी किताब पहले अध्याय में हम देखते हैं विश्वास से हम निर्दोष ठहरे हैं. We are justified by faith in God. Galatians chapter 2 verse 16, गलतियों किताब दूसरा वाला वचन बाइबल कहता है, and we have believed in Christ Jesus, so that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. Because by the works of the law, no human being will be justified. हम सब जन यीशु मसीह पर विश्वास रखने से हम निर्दोष ठहरे हैं. Amen. Aren't you happy कि आपके ऊपर जो दोष लगाए थे यीशु मसीह ने सूली पर उन दोष को ले लिया, वो दोषी बन गए ताकि आप निर्दोष बन जाए. और यीशु मसीह ने हमारे दोष सिर्फ अब के नहीं, यीशु मसीह हमारे सारे दोषों को जानता है. उन सारे दोष को अपने आप पर लेकर हमें निर्दोष और निष्कलंक पिता के सामने यीशु मसीह ने रखा है. उस निर्दोषता को हमें कर्मों से नहीं, धर्मों से नहीं, उस निर्दोषता को अच्छेपन से नहीं, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उस निर्दोषता को हम पाते हैं. Amen. We are justified not by being a good Christian. We are justified not that being a good religious man. We are justified not just because you keep the Sabbath. Of course we should. We are justified not because you sing well or not because you're a worshiper or a pastor or a teacher. We are justified by faith in Christ, whosoever you are. आपके पाप कितने भी गंदे रहने दो या कितने भी घृणित रहने दो, अगर यीशु मसीह ने आपको निर्दोष ठहराया है तो आपको दोषी कोई नहीं ठहरा सकता. आमीन. बोलो मैं यीशु मसीह में निर्दोष हूं, मैं यीशु मसीह में निर्दोष हूं. Aren't you happy? हमें कर्मों से पुराने नियम में वो अर्पण ले जाते थे, कोई 10 मेमने, कोई 4 भेड़े, कोई कबूतर को, कोई पंछियों को, इन सारे प्राणियों के लहू से पुराने नियम में सुलेमान का मंदिर, निवास मंडप लहूमय हो जाता था. अब नए नियम में यीशु मसीह ने एक ही बार सूली पर अपना निर्दोष लहू बहाया ताकि अब परमेश्वर का निवास स्थान लहू से नहीं, आराधना से भर जाए. परमेश्वर का निवास स्थान मेमनों के चिल्लाने से नहीं, लोगों के आवाजों से गूंज उठना चाहिए. And that's the reason why the Bible speaks to us. पौलुस कहता है विश्वासी तो विश्वास से जिएगा. The just shall live by faith. You are justified by the faith in Christ. और जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों का न्याय कैसा करेगा. और न्याय करने से पहले always remember Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. कारण सर्वांनी पाप केला आहे आणि देवाच्या आपण पाहतो करुणेला अंतर पडलेला आहे. And that's the reason why therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judges. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doest the same thing. वचन 2 को देखिए प्लीज.
but we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. अब ध्यान में रखिए, परमेश्वर हमारा न्याय अपने मन के हिसाब से नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारा न्याय सत्य के अनुसार करेंगे. Bible speaks to us, but we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सब का न्याय होने वाला है. और जो परमेश्वर के न्याय को डरते नहीं हैं, जो परमेश्वर के उस दिन को घबराते नहीं हैं, जो परमेश्वर के अच्छेपन को जानते हैं, उसकी न्यायित्व को भी देखा नहीं है, उन लोगों के लिए बाइबल कहती है, देखिए वचन 5 में, बट आफ्टर thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to every man according to his deeds. मेरे भाई और बहनों, ध्यान में रखिए. My first point was this, as I told you, we are justified by faith in Christ. हमारी निर्दोषता यीशु मसीह पर विश्वास करने से, रोम 1:17, गलती 2:16 के अनुसार हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें निर्दोषता प्राप्त होती है. अब कई को लगता है इतना बड़ा नाम है निर्दोषता, वो विश्वास से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कुछ करना होगा. रिमेंबर दिस, यू कैनॉट चेंज योर नेचर. हम हमारे मानवीय स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं. योर ओन सिंफुल नेचर इज लाइक अ मैग्नेट. इट पुल्स यू, इट ड्रॉज यू, इट स्नैचेस यू, इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स यू एंड मेक्स यू टू फॉल इनटू टेम्पटेशन. अगर तुम अपने बलबूते पर अपने मानवीय स्वभाव को बदलने की कोशिश करोगे, तुम कामयाब कभी नहीं होगे, क्योंकि बाइबल कहती है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए हैं, और इसीलिए वी ऑल आर गिल्टी बिफोर गॉड. परमेश्वर के सामने हम सब गिल्टी हैं, परंतु यीशु मसीह के अर्पण के द्वारा यीशु मसीह ने हमारे गिल्ट को लेकर हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं. अब हम पछतावे में नहीं रहते हैं, हम पश्चाताप करके आगे बढ़ते हैं. प्रेज द लॉर्ड. वी डोंट लिव इन रिमोर्स, वी वॉक इन रिपेंटेंस एंड गो फ्रॉम ग्रेस अपॉन ग्रेस एंड ग्लोरी टू ग्लोरी. माय सेकंड पॉइंट विल गो टू दिस. हम देखते हैं जब परमेश्वर हमें विश्वास करने से निर्दोष ठहराता है, उस निर्दोषता के द्वारा हमें क्या क्या मिलता है. लॉन्ग टाइम अगो, मुझे याद है, एक कॉलेज के विद्यार्थी से हम सुसमाचार सुनने जा रहे थे, और वो कॉलेज का विद्यार्थी जो है हमें अलग अलग तरीके से बहस करने लगा. So we told him, हमने कहा उसे, have you ever heard about Jesus Christ? उसने हाँ में उत्तर दिया. So what do you think about eternity? अनंत काल के बारे में तुम्हारा क्या सोच है, हमने पूछा. तो अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के जो लड़का था, तो उसने हमें एक कहा कि मैं उद्धार में नहीं, मैं मोक्ष में विश्वास करता हूं. मतलब कोई बात नहीं, तो मोक्ष कैसे मिलती है, उसने अलग अलग तरीके बताए. और उसे हमने कहा, अगर तुम्हारा तरीका सही है मोक्ष प्राप्त करने का, तो कितने पाप होंगे जो मोक्ष मुझे माफ करेगा. क्या मैं 50% पाप करूं तो मैं धार्मिक बन जाऊंगा कि मैंने 100% नहीं किया है, या तो मैं एक बार पाप करूं और फिर मैं बलि चढ़ाऊं और उसके बाद मैं निर्दोष होता हूं, वापस पाप करूं, वापस बलि चढ़ाऊं.
हम तो सब पापी हैं। और मानवीय स्वभाव अगर यीशु मसीह के हाथ में तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम पाप करते ही रहोगे और उसके कारण तुम अर्पण करते ही रहोगे। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। यू विल कीप ऑन डूइंग इट। पाप सिर्फ चोरी नहीं, पाप सिर्फ व्यभिचार नहीं, झूठ बोलना भी पाप है, गलत सोचना भी पाप है, या तो सच को झूठ में बोलना या झूठ को सच में बोलना, ये भी पाप है। यू डोंट हैव टू बी द बिग सिनर हु रॉब्स द बैंक। यू कैन बी अ सिनर इवन सिटिंग एट योर होम थिंकिंग रॉन्ग अबाउट योर नेबर। पाप में कोई प्रमाण नहीं है 50% या 100%। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं। अगर कर्मों से ही हमें अगर निर्दोषता प्राप्त होती है तो ध्यान में रखिए, जो बड़ा बड़ा पाप करता है उसके लिए बड़े बड़े कर्म करने पड़ेंगे, जो छोटे छोटे पाप करता है वो छोटे कर्म करेंगे। परंतु बाइबल कहती है कि हमें उद्धार जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को सूली पर लेकर, जिसे पाप नहीं मालूम था, पिता ने उसे पाप बनाया ताकि पिता की धार्मिकता हमें यीशु मसीह में मिले। यू कैन नॉट अचीव सैल्वेशन, यू हैव टू रिसीव सैल्वेशन। तुम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हो, उद्धार को स्वीकारना है। हालेलुया। तुम अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हें अनुग्रह को स्वीकारना है। तो जब हम निर्दोष बन जाते हैं, रोमियो की किताब 5वां अध्याय 1 से 11 के अनुसार हमें 8 प्रकार के आशीर्वाद परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। सो वुड यू लाइक टू रिसीव जस्टिफिकेशन बाय फेथ इन जीसस और जस्टिफिकेशन बाय वर्क्स ऑफ योरसेल्फ? क्या आपको निर्दोषता विश्वास करने से प्राप्त होनी चाहिए या कर्मों से? बाइबल कहती है यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें निर्दोषता प्राप्त होती है। यीशु मसीह ने सिर्फ आपको निर्दोष ही नहीं परंतु 8 प्रकार के आशीर्वाद दिए हैं। सबसे पहला आशीर्वाद रोमे किताब 5वां अध्याय पहला वचन, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. मेरे भाई और बहनों, जब आप निर्दोष बन जाते हो तब ध्यान में रखिए आपका और परमेश्वर का मिलाप हुआ है यीशु मसीह में। अब परमेश्वर आपसे नाराज नहीं, परमेश्वर आपको शाप नहीं देंगे। अब आप परमेश्वर की संतान हो और आप और परमेश्वर का रिश्ता शांति में है। सबसे पहला आशीर्वाद हमें मिलता है वो है शांति। आमेन। Jesus said in John chapter 17, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world giveth. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा joy I give to you, the joy which world doesn't give it. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा salvation I give to you. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा happiness I give to you. यीशु मसीह ने कहा the most important thing which the human mind needs, human spirits needs, is the peace of God which passeth all understanding. जब आपके जीवन में यीशु मसीह की शांति नहीं होती है, भले तुम शांति शांति कहो, you are restless in your spirit. जब आपके जीवन में यीशु मसीह की शांति नहीं होती है, तब आप चेहरे में बहुत दिखा सकते हो आप मासूम हो, पर आपके दिल में आप ही जानते हो कि तुम्हारा दिल में कितनी चल विचलता चल रही है। When there is peace of God missing upon you, जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में नहीं होती है, आप और ज्यादा चाहते हो, और ज्यादा चाहते हो, आप अनसेटिस्फाइड हो। जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में मिसिंग है, समस्या आने पर आप सबसे पहले रोना शुरू करते हो। जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में मिसिंग है तो आपको हर एक मुसीबत एक चट्टान लगती है और आपको हर एक दिन एक बोझ लगता है। मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहती है हे बोझ से परेशान लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
परमेश्वर आज के दोपहर को आपको निर्दोष ठहराता है। आपने भले कितने भी पाप किए हैं, आप विश्वास कीजिए यीशु के नाम से, उसे स्वीकारिए। सबसे पहला आशीर्वाद, आपको परमेश्वर शांति देगा, और वो शांति आपके समझ के पार है। नंबर 2 वर्स 2 कहता है, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 2, द बाइबल टेल्स अस, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. बाइबल कहती है, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. भाई और बहनों, the second blessing which God has blessed you to be, पहले हमने देखा we have peace with God. Then the Bible says to us, number 2, you have access towards God. परमेश्वर के पास आप कभी भी, किधर भी, कौन से भी समय आप परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। Aren't you glad for that? Hallelujah. You don't have to go to a specific temple to meet God. आपको किसी विशेष जगह पे जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को मिलने के लिए, या आपको किसी धार्मिक व्यक्ति की जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास वो आपको लेके जाए, या आपको किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं कि वो प्रार्थना करेंगे और उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। बाइबल कहती है अब तुम और मैं स्वयं परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कब? हर समय, कहां पर? कहीं पर भी। और इस बाइबल कहती है यिर्मयाह 33:3 में, मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और जो गहरी और गूढ़ बातें बतलाऊंगा। हालेलुया। You don't need a religious man. You don't need a religious saint to take you to God. You can go to God anytime. शायद आप परेशान हो, आप कार में हो, आप जेल में हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप घर में हो, बंद कमरे में हो, आप परेशान हो, आप जीवन से उब गए हो, जहां पर भी है उस वक्त आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके पास आने के लिए अपने पुत्र का रास्ता दिया है, और वो रास्ता आपको पुकार रहा है, तू जहां पर भी है मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। You have an access toward God. You don't have to climb the mountain to reach God. You don't have to sail the 7 seas to reach God. You don't have to have a religious saint to attain to God. You can go to God anytime through the blood of Jesus. Hallelujah. Can you say with me, I have access towards God? Hallelujah. कई बार लोगों को लगता है मैं एक संत को बुलाऊंगा, उसे प्रार्थना करवाऊंगा और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर संत की और पापियों की प्रार्थना सुनता है। तुम क्यों नहीं जाते परमेश्वर के पास और दिल से कहते हैं कि परमेश्वर, क्या जैसे हूं वैसे मैं आपके सामने आता हूं। You have an access towards God. यह आशीर्वाद है। हालेलुया। सिर्फ संडे टू संडे नहीं, आप मंडे को भी जा सकते हैं, आप ट्यूसडे पे जा सकते हैं, आप रात को जा सकते हैं, आप दिन को जा सकते हैं, आप दोपहर को जा सकते हैं। यू हैव एन एक्सेस टुवर्ड गॉड। द थर्ड बेनिफिट द बाइबल सेज, परमेश्वर के निर्दोषता के द्वारा हमें आशा मिली है। रोमियो किताब बाइबल कहते हैं, रोमियो चैप्टर 5 वर्स 8, द बाइबल स्पीक्स टू अस, इट सेज टू अस दैट द होप इन गॉड डज नॉट डिसअपॉइंट अस, because the love of God is poured abroad in our hearts. परमेश्वर ने आपको आशा दी है। मेरे भाई और बहनों, हम जिस सिचुएशन में रहते हैं, हम जिस प्रकार के इस एनवायरमेंट में रहते हैं, आज लोगों को भले 2 वक्त की रोटी कम मिले, उन्हें आशा की जरूरत है। They need hope. अगर आप देखोगे, लोगों से मिलोगे, वो आपको जरूर कहेंगे, मुझे नहीं मालूम मुझे कल का खाना कहां से आएगा, मुझे नहीं मालूम कि नौकरी मेरी चली जाएगी, मुझे नहीं मालूम मेरा क्या होगा। परंतु बाइबल कहती है अगर आपकी आशा यीशु मसीह में है तो आशा आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। द होप इन गॉड विल नेवर डिसअपॉइंट यू। हालेलुया। एंड एज वी गो फर्दर, बाइबल कहती है आपको आशीर्वाद मिला है। द फोर्थ ब्लेसिंग व्हिच बाइबल गिव्स टू यू, द वर्स नंबर 3 says, verse number 4 it says, 3 sorry, and not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. मेरे भाई और बहनों,
या धीरज ये परमेश्वर के आत्मा का फल है। यू नो, मेनी मैरिजेस are easily broken today because they are not able to patiently listen each other. Recently, I've met a wonderful couple and they invited me to their new apartment. And then they showed me the new apartment. It was a fantastic place. And they told me this is the place where God has blessed us, Pastor. And then they took me to the swing they have a terrace flat, and they took me to a swing. And while sitting on the swing, I asked both of them this question: tell me now, how are the things with both of you? And then when they started speaking, I understood something. I spoke to the husband. You need patience to bear her. And she needs self-control to understand you. मेरे भाई और बहनों, धीरज ये पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा का फल है। और ये धीरज इतना बड़ा रत्न है, अगर आप जेल में जाओगे और उन कैदियों से पूछोगे कि तुम यहां पर कैसे आ गए, वो आपको जरूर कहेंगे, 10 में से 1 जरूर आपको कहेगा, उस वक्त जो गुस्सा आया था फादर जी, अगर उस गुस्से को मैं काबू में नहीं रहता था, अगर काबू में करता था, तो उसके हाथ में वो छुरा, उसके हाथ में पत्थर, उसके हाथ में कुल्हाड़ी, उसके हाथ में वो ताकत नहीं आती। वो 2 मिनट का गुस्सा अगर उसे कंट्रोल होता था, तो आज वो इतने साल तक जेल में नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, धीरज, अगर उसके पास धीरज होता तो निश्चित रूप से वो 2 मिनट के गुस्से को काबू में लेकर इतना बड़ा अपराध उसके हाथ से नहीं होता था। आज हम सबको पवित्र आत्मा की धीरज की जरूरत है। हम सब जन इतने इम्पेशेंट हैं, अब चाहिए, अब प्रार्थना सुननी चाहिए, अब चमत्कार होना चाहिए। बाइबल कहती है कि धीरज से परमेश्वर क्या करता है? धीरज से परमेश्वर हमें संकट में से बाहर निकालता है। मेरे भाई और बहनों, रिमेंबर दिस, योर पेशेंस फॉर टुडे विल ब्रिंग ब्लेसिंग्स फॉर टुमारो। तुम्हारा आज का धीरज कल के लिए तुम्हें आशीष के दरवाजों को खोलेगा। तुम्हारा आज का धीरज कल के लिए तुम्हें संयम देगा। तुम्हारे आज का धीरज तुम्हारे कल के परिवार को संभाल के रखेगा। तुम्हारे आज का धीरज तुम्हारे मैरिज को संभाल के रखेगा। तुम्हारे आज का धीरज तुम्हारे हाथों को कभी उठने नहीं देगा। तुम्हारे हाथ का धीरज, तुम्हारे हाथ में कहीं कोई कुल्हाड़ी नहीं आएगी, छुरी नहीं आएगी, लोहा नहीं आएगा। आपके हाथ कभी उठेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का धीरज का फल उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। This simple thing, patience, is so important thing. I will give you a very fine example and finish with this. कई साल पहले there was a famous airlines called Turkish Airlines. ये सत्य घटना है। कई साल पहले टर्किश एयरलाइंस की विमान उड़ने वाली थी फ्रॉम इस्तांबुल। इस्तांबुल टर्की की राजधानी है, और इस्तांबुल से वो हवाई अड्डे से उस विमान को वो उड़ाने वाले थे। और क्या हुआ, कैबिन क्रू को अनाउंसमेंट की, हर एक विमान उड़ने से पहले पायलट्स अंदर जाता है, कॉकपिट को चेक करता है, उसके बाद ब्लैक बॉक्स होता है उसे देखता है, और उसके बाद कैबिन को जाता है, वैक्यूम करते हैं, फ्लाइट्स को साफ करते हैं। और इस्तांबुल की उड़ान उड़ने वाली थी। कौन से टर्मिनल पे था मुझे नहीं जानता, पर सारे पैसेंजर्स के टिकट चेक करने शुरू हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, हवाई अड्डे से टर्मिनल स्वयं से विमान उड़ने वाली है। और कैबिन क्रू को पहले जाना था, साफ सफाई करना था, और उस उड़ान को उड़ने के लिए अभी सिर्फ कुछ मिनट बाकी है। लोग अभी भी बाहर खड़े हैं, लाइन में लेट होने लगा है। तो
तो कैबिन क्रू को जल्दी जल्दी से वो काम करने लगे। कोई वैक्यूम करता है, कोई सीट साफ करता है, कोई बेडशीट लगाता है, कोई पिलो साफ करता है, कोई वैक्यूम में कोई रेस्टरूम क्लीन करता है। और कैबिन क्रू में से एक को एक जिम्मेदारी दी थी कि हर एक विमान में, इंटरनेशनल बोइंग में 6 डोर्स होते हैं, उन 6 दरवाजों को उसे बंद करना था। प्लीज पे अटेंशन टू दिस वेरेवर यू आर। और दरवाजे बंद करने वाला आदमी जो होता है, आई होप सो ही मस्ट बी एक्सपर्ट। भले एक बार तुम वैक्यूम मत करो, पर दरवाजा जरूर बंद करो। और जब उसे मालूम था पैसेंजर्स चिल्ला रहे हैं बाहर टर्मिनल पर, व्हाई देयर इज सो मच डिले, और कैबिन क्रू तुरंत सबको अंदर लेने लगे। और वो जो पता नहीं कैबिन क्रू मेंबर था, वो तुरंत दरवाजे बंद करने लगा, सॉकेट लगाने लगा, चेंज लगाने लगा, और सारे के दरवाजे बंद कर दिए। पैसेंजर्स बैठ गए, कुर्सी की पेटी बांध ली, मास्क का टीचिंग दिया गया सब जगह, और उड़ान रनवे पे चलने लगे। और जैसे जैसे इस्तांबुल से टर्किश एयरलाइंस उड़ने लगी, एंड व्हेन इट रीच्ड टू, आई मे बी रॉन्ग, आई थिंक सो, व्हेन इट रीच्ड टू 35,000 फीट, 35,000 फीट पर जब वो जो विमान है स्टिल होने लगा, तब अचानक एक दरवाजा खुल गया। अबाउट 35,000 फीट जब वो उड़ान उड़ने लगी, जब विमान स्थिर हो गया, और अचानक एक दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुलने के बाद द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन द एयरलाइन इंडस्ट्री, और पूरी विमान जो है, इमेजिन 35,000 फीट से गिरना, लोग 10 फीट से गिरते फ्रैक्चर हो जाते हैं। अबाउट 35,000 फीट, जो ऑलमोस्ट 300 पैसेंजर्स थे, एवरीबॉडी वाज डेड, सब लोग मर गए, इंक्लूडिंग पायलट्स, कैबिन क्रू मेंबर्स, और पूरी उड़ान जो है वो पता नहीं किसी पहाड़ पे गिर गई या समुद्र में गिर गई। और जब वो ब्लैक बॉक्स को देखा गया बाय स्पेशल इंक्वायरी, ब्लैक बॉक्स में कैमरा भी होता है, और जब उस ब्लैक बॉक्स में देखा गया, तब वो पहचानने लगे कि जिस कैबिन क्रू ने दरवाजे बंद कर दिए थे, वो भले घाई में था, पर घाई में एक लैच टाइट करना भूल गया। इमेजिन लैक ऑफ पेशेंस, कमिंग अंडर प्रेशर। अगर उसके पास धीरज होता, भले पैसेंजर्स को अंदर आने दो, अंदर आने से फिर भी दरवाजे बंद हो सकते हैं, और उसने धीरज नहीं रखा, और उसे लगा कि मैंने बंद कर दिए हैं, और उसके कारण वो भी शायद गुजर गए। 35,000 फीट से 300 लोग की एयरलाइन इंडस्ट्री में द बिगेस्ट ट्रेजेडी द टर्किश एयरलाइंस एवर फेस्ड। मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहती है, संकट आने धीर, धीराने शील उत्पन्न होतो। इन पेशेंस ट्रिबुलेशंस, इन ट्रिबुलेशंस होप। धीरज ये सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छा नहीं है मेरे भाई और बहनों। धीरज तब होना चाहिए जब तुमको बहुत गुस्सा आता है। धीरज तब होना चाहिए जब तुमको ऐसा लगता है कि हाथ में कुछ ले लूं और मैं कुछ कर बैठूं। धीरज तब रखना चाहिए कि तुम्हारा मुंह में इतने गलत गलत शब्द आते हैं और तुम्हें बोलने की इच्छा होती है, तब तुम शांत बैठते हो। धीरज वो चीज है कि तुम्हें हर एक मुसीबत में भले कैसा भी होने दो, आपको मालूम है कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये भी चट्टान हिल जाएगी, ये भी तूफान थम जाएगा, ये भी पहाड़ हिल जाएगा। और आप जब संयम रखते हो और संयम के कारण परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है। और जैसे अय्यूब के पास संयम था, अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और अय्यूब को परमेश्वर ने 7 गुना वापस दिया। द सेम गॉड ऑफ जॉब will give you 7 times more when you ask for patience, which experience tribulation, and tribulation hope, and hope does not put you to shame. आणि आशा आम्हाला लाजवत नाही. हालेलुया, हालेलुया.
और इसीलिए ये सब बातें हमें कर्मों से नहीं, ये सब बेनिफिट्स है, ये सब लाभ है। हाँ, ये लाभ कहां से मिलता है? जब हम यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष होते हैं। हालेलुया, आमेन। You have peace, you have access, you have hope, you have patience, you have love, you have Holy Spirit, you have deliverance, and you have joy unspeakable, full of glory. ये आठों आशीर्वाद आपके पीछे पीछे आते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अगर तू दिल में विश्वास करेगा कि पिता ने यीशु मसीह को मुर्दों से जी उठाया है और मुख से कबूल करेगा यीशु प्रभु है, तेरा उद्धार हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, ध्यान में रखिए, अब भी वक्त नहीं गया है। बाइबल कहती है तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। उस दिन, उस न्याय के दिन में जब जजमेंट होगा, अगर तुम्हारा दिल कठोर है, तुम्हारा दिल पश्चाताप नहीं करता है, तो आज परमेश्वर से मांगो, ऐसी क्या बात है मुझे पश्चाताप करने को रोकती है? ऐसा क्या मुझे अच्छा लगता है इस पाप करने में कि हर वक्त मैं उसमें एंटाइज होता हूं? ऐसा क्या है वो एडिक्शन जो आपके रोक के रखा है? आज परमेश्वर को कह दो, यीशु मसीह तूने सूली पर शैतान के सर को कुचला है और शैतान को सर कुचलने से इस एडिक्शन को कुचला है, उस जो आपकी लत है उसे कुचला है, उस जंजीरों को तोड़ दिया है। आज दिल से कहो, आज यीशु मसीह तेरे सामर्थ मेरे जीवन में बहने दे। आज शायद तुम बंद कमरे में हो या बंद कार में हो या सबके सामने देख रहे हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन देखने वाले हो, आई विल टेल यू, यू आर जस्टिफाइड बाय फेथ इन गॉड। आमेन। You are purchased by the blood of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के लहू से खरीदी संतान हो। आप कोई सिर एरी गिरी संतान नहीं हो। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह अंधकार से निकालकर उजाले में लाया है और शैतान के राज से निकालकर यीशु मसीह ने अपने राज में आपको ले आया है। और वही यीशु मसीह आपको निर्दोष कहता है। आप निष्कलंक हो, आपको वही दुनिया कलंक लगाती है। आपने ऐसा कुछ किया होगा कि लोग आपको हंसते रहेंगे, पर आज वही परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तुम्हारे सारे कलंक को धोने के लिए आज यीशु मसीह आया है। तुम्हारे सारे गुनहगारों को साफ करने के लिए यीशु मसीह आया है। तुम्हें निर्दोष ठहराने के लिए यीशु मसीह आया है। उस जंजीर को तोड़ने के लिए, उस लत को तोड़ने के लिए, उस परिवार को जोड़ने के लिए, उस विवाह को जोड़ने के लिए, उस लाइफ को जोड़ने के लिए यीशु मसीह आया है। आत्महत्या तुम्हारा उत्तर नहीं है, यीशु मसीह के पास आना तुम्हारा उत्तर है। और यीशु मसीह के पास आने से ये सारे आशीष तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। यू डोंट नीड मोर गोल्ड टू मेक यू हैप्पी, यू डोंट नीड अ बिग हाउस टू मेक यू सैटिस्फाइड, यू नीड पीस, यू नीड जॉय, यू नीड लव, यू नीड पेशेंस, यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड होप एंड यू नीड जॉय अनस्पीकेबल फुल ऑफ ग्लोरी। ये 8 आशीर्वाद आपको मुफ्त मिलते हैं। हालेलुया। कर्मों की जरूरत नहीं है कि हफ्ते में 2 बार उपवास करने से मैं धार्मिक बन जाता हूं। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है, मुझे स्वीकारो और मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। तुम जैसे हो वैसे परमेश्वर के पास आओ। कुछ नाटक करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिखावे की जरूरत नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छा हूं। परमेश्वर दिल जानता है। हालेलुया। आज वही परमेश्वर है जिसने लाजरस को जिंदा किया। आज वही यीशु मसीह है जिसे पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, जो है हम देते हैं, मेरी ओर देखो, नासरी यीशु के नाम से उठ और चलता है। वही यीशु मसीह है जिसने वादा किया, मैं जाता हूं और जैसे मैं जाता हूं वैसे वापस आता हूं। आज वही यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शाप देने के लिए नहीं, तुम्हें आशीष देने के लिए यीशु मसीह आया है। What do you lack in life? More money? You need a new house? Of course God will give you. But the most important thing is this: you need peace, patience, hope, joy, love, access to God. You need His mercy. You need His grace to overcome your problems. और मेरे भाई और बहनों, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जाने के वक्त अपने घर को नहीं ले जाएंगे, नई गाड़ी की चाबी नहीं ले जाएंगे, जाते वक्त आप घर के जो कागजात है वो लेके नहीं जाएंगे। ये सब यहीं पर रखना पड़ेगा। परंतु आज हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा टाइम कब है। अगले 2 घंटे के बाद है, 2 महीने के बाद है या 2 दिन के बाद है। पर जाने से पहले अपना अकाउंट सेटल करके जाना। परमेश्वर से कहना कि प्रभु यीशु मसीह,
मैंने आपके बारे में सुना है, पर सुनने से ज्यादा मुझे आज आपको स्वीकारना है। आज मैं सोना नहीं मांगता हूं, जो है उसे तू सोना बना दे। आज मैं चांदी नहीं मांगता, जो है मेरे दिल को चांदी जैसे चमका है। आज मैं आपको नया घर नहीं मांगता है, जो सा भी मेरा घर है उसे मुझे शांति दे दे। आज मैं परमेश्वर सक्सेस नहीं मांगता हूं, जो भी मैं करता हूं उसे आशीषित करना, वही मेरा सक्सेस है। आज मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह, उसके पास से मेरे पास होना चाहिए, उसको कैसा दिया मुझे मिलना चाहिए। आज आपने मुझे जो भी दिया है उसे कैसे आगे बढ़ाना है, इस बुद्धि को मुझे दे दिया, वो आपको जरूर है। आप जैसे हो पिता के पास आइए, क्यों ना आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे कि मेरे पास एक्सक्यूज नहीं है, माझ्याकडे सबब नाही प्रभू यीशु, मी कबूल करतो की आज मी पश्चाताप केल्याशिवाय खरं बाप्पा मी सगळ्या प्रवेश करू, मला पश्चातापी अंतःकरण दे. That Paul was saying to the church of Rome, you don't need just his blessings, you need his grace. God is before you, will lead you. God is with you, will guide you. God is surrounding you, will protect you. God is behind you, will guard you. And God is in you, is the hope of glory. आज दिल से कहो, जो यीशु मसीह मेरे सामने है, आगे है, वो मुझे मार्ग दिखाता है. जो यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा दोस्त है. जो यीशु मसीह मेरे चारों ओर है, वो मेरी सुरक्षा है. जो यीशु मसीह मेरे पीछे पीछे आता है, वो मेरा रक्षक है. जो यीशु मसीह मेरे अंदर है, गौरव की आशा है. Can you just sell it? खुदावन, तू चांदी से भी ज्यादा कीमती है, सोने से भी ज्यादा महंगा है और हीरो से भी ज्यादा खूबसूरत है. जैसे अब्राहम ने इसहाक को अर्पण चढ़ाया, आज दिल से कहो, मेरे जीवन का इसहाक कौन है? यीशु मसीह. उसे मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूं. मैं आपको चाहता हूं, भले इसहाक मेरे जीवन चला जाए, यीशु मसीह आप मत चले जाना. आई नीड यू मोर देन. दिल से कहो, जहां पर भी आपको लगता होगा, is there a God who can save me? Yes, sure, there is a God in heaven. His name is Jesus. He calls you this afternoon. वो आपको पुकार रहा है. इसे कहो दिल से, I need you more than yesterday, Lord. I need you more than words can say. फिर आप दिल से कहेंगे, यीशु मसीह, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है. मैं दोस्त को फोन करूंगा, वो मुझे आएगा, मुझे सलाह देगा. शायद आपका दोस्त आपका फोन नहीं उठाएगा. आपके रिश्तेदार आपको शायद सुनना नहीं चाहते हैं, पर यीशु मसीह अपने कान लगाए हुए आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है. तो आपको दिल से कहे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मैं जानता हूं तेरा कदम फिसल गया है. मैं जानता हूं कि तूने गलत किया है. मैं जानता हूं तू बहुत धार्मिक है. मैं जानता हूं तू बहुत अधर्मी है. आज पिता आपको यीशु की नजर से देखे. यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु तुम्हें बुला रहा है. यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने दे. तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने दे. तुझे यीशु बुला
यीशु आप जहां पर भी हैं, यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। आप ऐसा मत समझो कि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वो आपसे प्रेम नहीं करता है। ऐसा मत सोचो यीशु मसीह मुझे काम क्यों नहीं मिलता है, मुझे सत्य क्यों नहीं प्राप्त होता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है। आप जहां पर भी हो, अब दोनों हाथ को उठाइए और दिल से कहिए कि यीशु मसीह आज सचमुच मुझे किसी नौकरी से अच्छा, मुझे आपके उस अनुग्रह की जरूरत है जो मुझे हर वक्त मेरे कमजोरी में मेरी ताकत है। आज मुझे उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है जो मेरे पैरों को हरनी के पैर के समान बनाता है, ताकि चट्टान से मैं डरूं नहीं, एक चट्टान पर मैं हरनी के समान मेरे पैर बनाकर मैं चढ़ पाऊं और यीशु मसीह इस चट्टान पे चढ़कर मैं यीशु मसीह के विजय के झंडे को लहराऊं और दिल से कहूं यीशु के द्वारा मैंने विजय प्राप्त की है। हालेलुया। या आपको किसी लत में आप फंस गए हो, आपको लगता है कि यीशु मसीह इतना आप फंस गए हो कि आपको कोई आशा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आज जो लाजरस को जिंदा कर यीशु मसीह आपको कहता है, अगर लाजरस 3 दिन कंफर्म डेड है, मेडिकली कंप्लीटली गॉन है, वो लाजरस जिंदा हो सकता है, तो तुम तक जिंदा हो, तो यीशु मसीह क्यों नहीं आपको छुड़ा सकता। आप जहां पर भी हो अपने आप को समर्पण करो और को यीशु मसीह, मैं दिल में विश्वास करता हूं कि पिता ने यीशु मसीह को मुर्दे जी उठाया है और मुख से कबूल करना यीशु ही प्रभु है। आज पिता हमारे पत्थर दिल को तोड़कर हमारे दिल को यीशु मसीह आपके दिल के समान बनाए। हम पाप को पाप ही देखे, सत्य को सत्य ही कहे। यीशु मसीह पिता, आपका वचन कहता है कारण जसा तो प्रकाशात आहे, त्या प्रकाशामध्ये एक में सहभागिता करू आणि येशू ख्रिस्त पित्याचा पुत्र आहे, ज्याचे रक्त आम्हाला सर्व पाप शुद्ध करते। जैसे वो उजियाले में है वैसे आप उजियाले चले, ताकि हम एक दूसरे सहभागिता कर सके और यीशु मसीह पिता का पुत्र, उसका लहू हमें सारे पाप को शुद्ध करता है। पिता, आज आपके लहू से उस भाई को, उस बहन को, उस परिवार को ढकना यीशु मसीह। आज आपके लहू से उस घर को ढकना, उस कार को ढकना यीशु मसीह, उस मैरिज को ढकना। पिता, हम विनती करते प्रभु यीशु मसीह, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। आज हम पूरे जीवन को, मन, प्राण, शरीर को आप ही के हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आइए, हमें छू लीजिए पिता, आपके सामर्थ्य से भरने दीजिए। हम सारी महिमा आपको देते हैं, नासुर यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर येऊ, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज तू आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आमच्या सोडले आहे तशीच तू आमच्या आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमेन। आता देव बाप्पाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र गोड सहवास आम्हा सर्वांबरोबर आता आणि सदा सर्व का असो। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आशीर्वाद दो। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको निर्दोष बनाया है। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, आप अपने आप को बड़ा पापी मत कहिए। आज से आप परमेश्वर की संतान हो। जो भी यीशु मसीह में नई उत्पत्ति है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया है। आज से आप नई उत्पत्ति हो। आपका नाम, अगर पहली बार आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है, तो आपका नाम जीवन की किताब में यीशु मसीह ने लिखा है। आमीन। और वही यीशु मसीह, उसके अनुग्रह के द्वारा आपकी दुर्बलता में वो आपकी ताकत है, आपकी निराशा में वो आपकी आशा है, और आपके साथ वो हर पल है। So इसलिए you are a new creation, no more in condemnation. You are redeemed by the blood of the Lamb. You are spotless, you are blameless, and of course, we all are progressively sanctified every day. When we shall see Him, we shall be like Him. Thank you so much for logging in. We appreciate it one more time. आप आ गए, प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद दे। We are very soon, we are remaking our Facebook account. It won't be account anymore, it will Facebook page. So please
बी पोस्टेड विद अस। आप हमसे संपर्क करते रहिए फेसबुक में। इफ यू आर ब्लेस्ड, highly encourage you to make others to log in, and we are working, we're also on YouTube, हम YouTube में भी है, and we have a YouTube channel, please subscribe us, आप सब्सक्राइब कीजिए और जितने आपके दोस्त उन्हें बताइए, and we are growing and we are on Instagram also, highly encourage you, अगर आप Instagram में हो तो we are a Bethesda AG Church, where is there, somebody asked me yesterday what's your account on Facebook, हमारा Facebook में Bethesda AG है, आप जरूर लॉग इन कीजिए। अगर आपको लाभ हुआ है परमेश्वर के वचन के द्वारा, दूसरों को बताइए। एंड श्योर इनफ वी आर नॉट हियर टू प्रमोट आवरसेल्व्स, वी आर नॉट हियर टू प्रमोट द चर्च, वी वांट टू लिफ्ट द नेम ऑफ जीसस हायर सो अदर्स कैन बी अ ब्लेसिंग। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, आमेन, सी यू वेरी सून। प्लीज कीप प्रेइंग फॉर अस एंड हैव अ ब्लेस्ड मंथ ऑफ नवंबर। और जो देख रहे हैं, अगले संडे को हम प्रभु भोज लेने वाले हैं, आमेन। एंड द चर्च मेंबर्स, आपको हम वेरी सून, आपको हम व्हाट्सएप पर हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको मैसेज जरूर करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड ऑफ यू। थैंक यू सो मच।